Hi, this is Big Little Lives, where pediatric advice meets the beautiful chaos of parenting reality. मैं हूं Dr. Nida Khan, a pediatrician and a new mom, turning complicated clinical knowledge into calming conversations. This is our first episode, and there is no better way to start than talking about the tiniest, biggest little miracles, premature babies. वो champions जो वक्त से पहले इस दुनिया में आ जाते. As a pediatrician and as a mom, I know when a baby arrives early, parents feel overwhelmed. It is very scary. But here's what I want you to know. Premature babies are fighters. और आप भी हो. Today, we are going to break down everything about preemies. Medical knowledge को simple बनाते हुए, what actually happens in the NICU, and most importantly, how do you navigate this journey with hope and confidence? Whether you're a parent of a preemie, expecting early, किसी को support करना चाहते हैं, this episode is for you. So, without further ado, let's talk about these tiny miracles and the big love that surrounds them. और बिल्कुल। हमारे साथ है एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत बेहतरीन दोस्त and a neonatologist in the making, Dr. Zulkarnain. Welcome to the show. How are you? Hi. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be on your show. Thank you for showing up, most importantly. Okay, तो सबसे पहले जब पेरेंट्स प्रीमेच्योर बेबी को एनआईसीयू में देखते हैं, द ट्यूब्स, द मॉनिटर्स, एवरीथिंग, द incubators, it's very scary for them. So how do you start reassuring them? First thing is that they are really happy to see the baby alive. So they are really happy. And usually what happens that there is antenatal counseling. So we tell us about the complications and we tell us about the prognosis. We tell us about the outcome. Everything is being recorded and everything is on paper. So we usually prognosticate like that if 26 weeker and 600 gram is coming, there is a different prognosis than a 31 weeker with 1.2 kg, and we have to tell them, and it's every right of the patient to know about the prognosis. Really tell them the complication, the things which are needed for the baby, and how long the baby will be staying in our NICU. So when the mother comes, the first expression is not of fear. The first expression is really thankful and to see the baby alive. So in simple words, what is prematurity? इस शब्द में अगर हम लेते हैं तो जो बच्चा समय पर होना चाहिए था और अच्छे वजन का होना चाहिए था उससे कम हो जाता है. कम समय का बच्चा और कम वजन का बच्चा. तो जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस जो माँ के पेट में होते हैं नॉर्मली, जो कि पूरे हो जाने चाहिए एक बड़े बच्चे में, एक नॉर्मल बच्चे में, वो नहीं हो पाते हैं. तो उस बच्चे का एक तरह से जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो हाल्ट हो जाता है हर ऑर्गन का, और वो बच्चा दुनिया में आ जाता है. तो बहुत स्ट्रगल्स होते हैं न्यूबॉर्न, एक प्री टर्म न्यूबॉर्न के साथ. तो फीडिंग में इश्यूज होते हैं, वेट नहीं बढ़ता, इतना लंबा स्टे रहता है. तो उसके क्या रीजंस हैं और उसके बारे में आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें. देखिए, सबसे पहली बात अगर आप फीडिंग इशू की बात उठाएं तो एक चीज होती है, वो होती है गट इमेच्योरिटी. तो बहुत ज्यादा फास्ट फीडिंग हम नहीं एडवांस कर सकते, तो बहुत स्लो फीडिंग होती है. और सिर्फ गट इमेच्योरिटी नहीं, हर ऑर्गन की इमेच्योरिटी होती है. तो इवन यू स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन, हार्ट, लंग्स, गट, स्किन, किडनीज, एवरीथिंग इज इमेच्योर. दैट सपोजिटली अगर कोई 7 माह का बच्चा बाहर है तो 7 माह और 9 माह के बच्चे में फर्क होगा, और वो सारी चीजें इमेच्योर है. उससे जितने भी रिलेटेड सपोर्ट है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें उसके फॉलो करना पड़ेगा. तो जाहिर सी बात है फीडिंग के लिए हमें टाइम लगेगा. ओके, सांस लेने में उसे दिक्कत होगी, उसके लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा. केयर करनी पड़ेगी कि उसके ब्रेन का सही रहे सब कुछ. केयर हमें ये करनी पड़ेगी कि उसका हार्ट सही से काम करे. केयर हमें ये करनी पड़ेगी कि उसके स्किन सही से काम करे. स्किन भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो हम इमेच्योर बच्चों में बहुत ध्यान से केयर करते हैं. बहुत छोटे एफर्ट्स आप चेंज कर सकते हैं बच्चे के लिए, और हर प्रोसीजर आपको बहुत स्लोली करना है. अगर आपको इवन अगर एक ग्लव्स रिमूव करना है तो ठीक है, आपको देखना है. अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर की. शुगर चेक करना है, अगर अर्जेंसी है तो आप शुगर चेक करिए, लेकिन अगर वो बच्चा सो रहा है तो उठा के उसकी शुगर हम नहीं चेक करेंगे, या उठा करके हम कोई भी चीज. अभी अब बहुत समय बदल गया है.
हम बच्चों की रिदम के साथ चलते हैं, सर्काडियन रिदम, सारी चीज़ों के साथ हमें फॉलो करना पड़ता है। तो अगर वो बच्चा चाह रहा है तभी हम उसे पिक करेंगे, अगर वो बच्चा चाह रहा है तभी उसका डायपर चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत देर में आई, और शुरू अच्छा। में मेरे लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग थी क्योंकि मुझे आदत नहीं थी इन चीज़ों की, लेकिन धीरे-धीरे अब मैं उन चीज़ों को एन्जॉय करने लगा। और इससे और बॉन्ड बढ़ता है, मेरे और बच्चे का साइकिल हो जाता है सिंक पे। कई बार ऐसा होता है कि वो और मैं एक टाइम पर ही एक-दूसरे को हाय बोल रहे होते हैं। तो आई रियली एन्जॉय इट, और ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसीजर है डेवलपमेंटली सपोर्टेड केयर बच्चों का, जो हम अक्सर मिस कर देते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छे आउटकम आ रहे हैं। और इन सब के बीच में उसे एक माँ का सपोर्ट मिले, एक लविंग केयर मिले, वो एक ज़रूरी है, ठीक है? एक न्यूनेट और एक अडल्ट पेशेंट जो आईसीयू में है, उसमें बहुत फ़र्क होता है, और सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि जो लव और केयर जो डे 1 से उसको मिलना शुरू होता है, फ्रॉम नर्सेस, फ्रॉम डॉक्टर्स, और ऑफ कोर्स फ्रॉम मदर। हम केएमसी, बिल्कुल हमारा ये रहता है कि हमारा एजेंडा ही केएमसी है, हम 0 आवर्स केएमसी वाले, हम 1 आवर पे केएमसी स्टार्ट करते हैं। तो ये केएमसी के सारे बारे में भी आप बताइए एग्ज़ैक्टली क्या होती केएमसी है के एक्चुअली कैंगरू मदर केयर है। तो कैंगरू आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में एक जानवर होता है, तो उसके बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो उसके पेट में रहते हैं, बहुत आसान बातों में ये कहें कि उसके पेट में रहते हैं, और बहुत दिन बाद जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। तो वही हम बच्चों में करते हैं, और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। और उससे क्या होता है कि बच्चा हम माँ की छाती के बीच में लगा के रखते हैं, और सिर्फ माँ नहीं, कोई भी इसको दे सकता है, डॉक्टर्स भी देते हैं कभी कभी। मैं कभी कभी फादर्स आते हैं, ग्रैंड मदर्स आती हैं, कोई भी आती है, हम उसको ये कहते हैं कि बच्चे को आप छाती पे, उससे फायदा ये टेम्परेचर, वेट, इमोशनल स्टेबिलिटी, हर चीज में, हर स्टडी, दुनिया की जितनी स्टडीज आप देखेंगे, हर स्टडीज में फायदा पाया गया है। जैसे कि आप लिटरेचर में भी पढ़ते हैं और भी सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस से कि अब एनआईसीयू का एनवायरनमेंट ज़्यादा पेरेंट फ्रेंडली हो गया है पहले के मुकाबले? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। देखिए, ये बात अब हो गई, वो बात गई कि पेरेंट्स बाहर रहेंगे। अब किसी भी आईसीयू में पेशेंट सेंटर्ड केयर की बात हो रही है। आप कहीं भी जाएँगे, इवन एडल्ट आईसीयूज में पेशेंट सेंटर्ड केयर की बात हो रही है। हमारे पास तो स्टडीज हैं, एमएनसीयू की स्टडीज हैं, पेशेंट राउंड्स पर पेशेंट्स, हम पेरेंट्स को रखेंगे, राउंड्स पर वो देखें कि क्या डिस्कशन हो रहा है, उनके बेबी के बारे में हम क्या सोचते हैं, हम क्या प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद वो क्या क्वेश्चंस हैं। और ऑफ कोर्स इट्स चैट जीपीटी, तो इफ आई टेल देम समथिंग दे विल कम विद मी विद 100 क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें पेरेंट्स की हेल्प से ही हो सकती हैं सॉल्व। सेकेंडली, for me, it's a baby. Of course, being honest, for me, it's a NICU baby. And maybe I'm seeing 6, 7 patients under me. For a nursing staff, it would be 1 or 2 patients under me. But for that patient, mother, this is the only baby that she has to take care. So when it comes about family-centered care, the whole family, they will give attention more efficiently than us in an environment, to be frank, be it changing diaper, be it touching the baby. So everything is now patient-centered care. And we preferably ask mother and fathers to do that thing. And furthermore, the transition takes place very quickly. For example, the mothers know how to do the thing. So later on, we need not to teach them how to see the things, the proper way of changing the diaper and proper way of taking care. And I think when mother, baby, and doctor, they all evolve as a family. I think whenever I get a premature baby, it's like a new family member to me. तो मुझे लगता है कि हर माँ इस गिल्ट से गुज़रती है कि शायद मैंने कुछ किया, मेरी गलती से बच्चा पहले हो गया। ऐसा सोचना चाहिए उसको या कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं प्रीमैच्योरिटी के? लाइक देखिए हाउ डू यू रिस्क टेक गिल्ट फ्रॉम द मदर? देखिए रिस्क फैक्टर्स तो होते हैं प्रीमेच्योरिटी के। अगर किसी माँ को पहले भी प्रीमेच्योर बच्चा हुआ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई सी माँ को अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई और कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से यूट्रस सर्जरी नहीं कर रहा, तो रिस्क बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर है प्रीमेच्योरिटी की, ऐसा बात नहीं। तो अगर आउटकम आपको मिल रहा है तो गिल्ट की कोई जरूरत नहीं। फर्दर मोर, दिस इज नॉट इन द सी इट प्रीमेच्योरिटी ड्यू टू एनी कॉम्प्लिकेशन इज नॉट इन एनी handy. There is no blame shift. We never blame anyone, and we take it as a natural process. Or we cannot help prematurity. It's a nature process, and we cannot. Nobody should be guilty of it, and especially mother. And we never tell them that you gave that premature. It's not an issue. It's a premature baby, and we need to solve the issue. So, being a neonatologist, what I feel, frankly, is that there should be no blame shift, and we are proud. We should be proud of managing those babies. ओके, तो सबसे ज़्यादा किस वजह से प्रीमैच्योर बेबीज़ की डेथ होती है? अगर इफ दे एक्सपायर सो
मोस्ट कॉमन कॉज क्या होते हैं? देखिए, इंडिया में तो मोस्ट कॉमन कॉज सेप्सिस ही है, लेकिन अब वो धीरे-धीरे वो भी चेंज हो रहा है। और इसके अलावा प्रीमेच्योरिटी के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अ, जैसे लंग से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन इन सब में अभी सेप्सिस सुपरसीड कर रहा है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा कंट्रोल मेजर करते हैं तो वो भी नहीं होता। मैंने प्रीमेच्योर बेबीज के बहुत अच्छे आउटकम्स देखे। तो और ये एक ऐसी चीज है जो किसी के हाथ में भी नहीं होती, तो इस चीज को आप रोक भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। तो आप अगर एनआईसीयू में जा रहे हैं एज ए पेरेंट्स, तो आप जब भी जाए तो अपने आप को अच्छे से हाथ धो लें, जो भी आपको स्टेप्स बताए गए हैं फॉलो करें। अगर आपके एप्रन पहनना है तो एप्रन पहनें, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखें। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि छोटे से छोटे बच्चों को आप लोग बचा लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या रहते हैं? मतलब पेरेंट्स को हमेशा एक फ़िक्र रहेगी कि हमारा बच्चा टाइम से पहले हुआ था तो ये कमज़ोर है, इसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, या डू दे कैच अप इवेंचुअली? देखिए, दुनिया बदल रही है। पहले सर्वाइवल की बात हो रही थी, अब सर्वाइवल विदाउट डिसेबिलिटी की बात हो रही है हर जगह। और हम भी यहाँ पर सर्वाइवल विदाउट डिसेबिलिटी की बात करें तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो भी डिसेबिलिटी की चीजें हैं जो बाद में बच्चे को दिक्कत दे सकती हैं, जो बहुत कॉमन है, हो जाती थी पहले, जैसे कि उसके दिमाग पर असर पड़ना, दूसरा उसकी आंख पर असर पड़ना कि बहुत लंबा ऑक्सीजन रहा, तीसरा ये होता था कि लंग्स पर असर। ये तीनों तो बहुत कॉमनली हम देखते थे। और इवन मैं भी जब बहुत पोस्ट ग्रेजुएट था, मेरी अर्ली एजुकेशन के दौरान, मेडिकल एजुकेशन के दौरान, मैंने बहुत ये चीजें देखी। लेकिन अब ये सारी चीजें बहुत बदल गई हैं, और अब इन सब चीजों को हम प्रिवेंट करने लगे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नो रिस्क ऑफ सेरेब्रल पैल्सी, नो बीपीडी, दैट इज द लंग इशू। So these things are coming, and from day one, we try to prevent these things for the measures that we take, so that these things cannot happen. And I'll tell you frankly, today I was in OPD and I got 26 plus 4 weeks, 610 grammar baby, and in now she is 7 months old, and she was doing perfectly fine. I cannot imagine the thing that I went through as a doctor even. I don't know what parents must be feeling, but as a doctor, I saw that baby in March, struggling with everything, stayed in NICU for 105 days. So now when that baby came, I really felt proud of everyone, every team member, and that is how things should go on. The prevention of disability should be. But there can be some complications during the stay, and it is not about the neonatal life. Post neonatal follow up, if it is good, including early intervention that is going on through the every program. Even Indian government have that program under National Health Mission. uh, so that those complications in postnatal life with early intervention can also be managed very easily. So if we are, the thing is that we have to identify things early, we have to manage things early. So what I say to parents always is that it does not end at your discharge. I don't know where it ends, but you have to come for us for at least 2 and 3 years. मेरा ये अगला सवाल होने वाला था कि डू यू हैव अ मेमोरेबल स्टोरी और समथिंग दैट विल ऑलवेज स्टे Yeah, I विथ have यू? one. I will tell you one story very close to my heart. When I joined as a senior resident, DM resident in my program, so one baby was born the day I was joined. So the 7th January. So the baby was around the 575 grams, 26 weeks a baby. So mother had abrupt show. So baby was born, baby. तो मैं बहुत नया था, 5 से 35 ग्राम का बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था। मैं देखता रहा, उसके बाद फिर मैं उसका डॉक्टर बना, फिर 1 महीने बाद मेरी पोस्टिंग चेंज हो गई, फिर 1 महीने बाद मेरी पोस्टिंग कहीं और हो गई, 1 महीने बाद मेरी पोस्टिंग कहीं और। बट एक चीज कॉमन थी कि मैं और वो उसकी मम्मी मिलते थे और हम दूसरे एक ही क्वेश्चन पूछते थे, डे ऑफ लाइफ। तो लाइक शी वुड टेल मी कि 72, तो मुझे पता था कि मेरा यहाँ पर 72 डे हो रहा है, और इस तरह से। सो फाइनली वी डिस्चार्ज दैट बेबी एट 110। So now whenever she comes, she needs me. So the calculation where I joined my DM is not with me. I see that baby, I ask mother and I get that calculation, and the baby is doing perfectly fine. Do you get emotionally attached with these Of babies? course, of And course, of if course, a you, lot. you know, if you happen to lose one of them, does it take an One emotional toll on you? 100% it is there, Meda, 100% it is there. And sometimes I feel so bad. I've cried. I've cried seeing baby coming on follow up also.
and I've tried losing babies also. So because usually we see as a senior has been only 4 or 5 patients in a level 3 NICU. So eventually you get attached to them. You know their routine. They start to identify you. You know what is their lab values. Everything you remember them like a scientific equation, not emotional equation also, but as a scientific and medical equation. You know them in and out through their baby. So losing a baby, unfortunately, is very tough for me. Some babies deteriorating, and I get to know the news even I am at home post duty at 9 p.m. So I really feel bad. And it's not about emotion. I think about ergonomically and economically also. That how much time I have put, how much time the parents have put, how much time the school staff has put. Now baby is pushing or something else due to some other reason. Then I of course feel that. And many a times I have cried alone. And many a times I've cried in front of people. Recently, we lost one twin long back. And the other twin came. So that twin, she was giggling. So the only thought in my mind is, something could I have done for the other twin. The other twin would also be giggling same. So I don't know. There are a lot other factors. Some factors are not in our hand also. But in the end, we are emotional. You get attached to the baby. If they, you are bound to get attached. I would say that you are bound to get. How you would not get attached to the baby? That is the question. Hmm. So if you are attached to the baby, and not only the baby, families, I talk with them. So they will tell you their story. And there are so much struggling. They are in a government hospital. You imagine somebody coming from a referral hospital and just don't know anything about this hospital and just sitting outside with one bag in their hand. The struggle they are doing. No? Whenever I feel something bad about me, no, then I see their struggle and everything is okay for me. Everything is literally okay. I have no struggles right now. Really, if I see their struggle, they are just sitting. They don't know where to eat, where to go for washroom even. And even the mothers, they don't know. And they are just struggling for the baby and the kind of care they want to give for the baby. आईसीयू ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनसे एक अलग ही तरह की मोहब्बत हो जाती है। कोई नए पेरेंट्स जो जिन प्रीमैच्योर बेबीज़ के साथ अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें अगर तो? व्हाट्स योर मैसेज? डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। बिल्कुल भी नहीं साथ छोड़ना है। और हर दिन मिरेकल्स होते हैं। हर दिन मिरेकल्स होते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। आपके बच्चे की प्रॉपर केयर आपके डॉक्टर कर रहे हैं। उन पर भरोसा रखिए। आप जो उस बच्चे के लिए कर रहे हैं कर सकते हैं। आप प्रीमेच्योरिटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया आप उनको सपोर्ट करिए। केएमसी दीजिए, मदर मिल्क के लिए इंश्योर करिए। सब टेंशन लेंगे, बिल्कुल मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ, टेंशन लेंगे दूध कम होगा, आपका इमोशनल टॉयल बढ़ेगा, बच्चे पे बिल्कुल फर्क पड़ने लगता है जो पेरेंट्स टेंशन होते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है ऐसा। तो आपको हुँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको बच्चे की बहुत अच्छे से केयर करनी है और अपनी भी केयर करनी है। आपका हाँ, हॉस्पिटल इससे बहुत लंबा होने वाला है। तो आप अच्छे से खाइए पिए। मैं अपने पेरेंट्स से यही पूछता हूँ, आपका इट्स इन टर्म, तो वेदर दे हैव ईटन और नॉट। तो आपने खाना खाया या नहीं खाया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बच्चे को हम, सबसे पहली बात तो बच्चे का हम ख्याल रखते हैं। आपको टाइम से आना है, केएमसी देना है। आपको टाइम से आना है, अपना दूध एक्सप्रेस करना है, बच्चे के लिए देना है, या और केएमसी और दूध अगर आप साथ में पिला रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको करनी। इसके अलावा अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अनलेस बेबी के साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन, बहुत अच्छे आउटकम्स हैं प्रीमेच्योर बेबी के। बिल्कुल नहीं घबराना। डॉक्टर्स जैसा कह रहे हैं आप उनको फॉलो करिए। बहुत एक्सपर्ट हैं, उन्होंने समझ रहे हैं चीज़ों को, वो आपको बताएंगे चीज़ें कैसी होंगी। आप उसको फॉलो कीजिए। तो अभी जो बडिंग पेरेंट्स हैं या जिनको अभी रिसेंटली प्रीमेच्योर बेबी हुआ है, उनसे मैं ये कहता हूँ, बिल्कुल भी वो टाइम गया जब प्रीमेच्योर बेबीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते थे। बहुत अच्छे आउटकम्स के साथ बेबी आ रहे हैं। आपका बच्चा आपकी गोद में होगा, आप उसकी फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे और सारी बर्थडे मनाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वर्किंग एज़ अ नियोनेटोलॉजिस्ट आपको अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लगता है? वर्किंग एज ए न्यूरोलॉजिस्ट एंड वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, मेरे साथ एक ये चेंज आया कि शायद मैं और ज़्यादा क्लोज हुआ और पेशेंट सेंटर्ड केयर मेरी थोड़ी और बढ़ी। और अब कोई भी ऐसा टाइम नहीं हो सकता चूंकि मैं अपना पेशेंट इग्नोर करूँ। मेरी प्रायोरिटी हमेशा पेशेंट होती है और हमेशा हमें सिखाया जाता है कि पेशेंट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारी लाइफ में और हुँ। कुछ हम सोचते भी नहीं है। और उस पेशेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं करना है। तो
और डेडिकेशन मेरा बड़ा एज ए न्यूरोलॉजिस्ट है। पहले भी पीडियाट्रिक्स में आया था तो सबने ये कहा था कि एक बहुत डेडिकेटेड ब्रांच है और उसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए था। और फिर जब मैं न्यूरोलॉजी में आया तो मुझे ये समझाया गया कि जितना डेडिकेशन आपने दिया था उससे आपको 100 टाइम्स ज़्यादा डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो यही है। Do you think pediatricians in general or neonatologists, do they make better parents, or do we have an edge with parenting? I mean, you don't have kids yet, but आपको क्या लगता है? Do you have an opinion on this? Should I cut this question out entirely? I think they would be good parents with anxiety. Ultimately, you learn to outgrow it that whatever will happen, it's not in your hand, whether prematurity or any complication. So we are bound to we are bound to be a good parents because we have learned everything scientifically. But the adverse effect of learning those scientifically is that we think of more adverse outcomes also. It is how we are taught. So to anticipate the complication is Worst the case. thing that so we think about that, but it's okay. Hmm. The good aspect about is that when we are anticipating, we are responding it early. अभी जो pediatricians हैं want to pursue neonatology, उनके लिए कुछ guidance या कुछ insight? It's a very tough question. Uh, see, you have to be करना चाहिए कि नहीं? dedicated. You have to be dedicated for your parents, and it for super specialty program. Of course, it would be daunting. It is more than your ND because in MD you don't have responsibility. Here you are bound to be responsible. You cannot say no that I have not done this. So there is no in that, and for workload is the same, and apart from that, responsibility will also come. But eventually, you will learn new things, and it is about taking things positively rather than taking it negatively. So, in my duties, whatever I think that what I have learned new, what is the thing. So whenever I get a new case to manage, I get really excited. So it's all about the perspective. And of course, it's a residency, the same residency. It's just a senior residency, and residency means you have to live there. But once you learn and once you will come out of it, you will be a different person. And trust me, you will forget pediatrics. So first thing is It's that it will be completely. all of all new branch for you. And when you will see the outcomes, you will get to know the new thing. You will enjoy it a lot. Thank बहुत you अच्छा so लगा। much for your time, and I know आप ड्यूटी से आए हैं, you're tired, but you're still there for me for this new It concept was a and very nice interaction. I really loved it. For the first time in 1 year, I'm really proud of telling what I do, apart from crying that I don't know what to do. नहीं, thank you so much for those wonderful insights. I'm sure this will resonate with a lot of parents and a lot of neonatologists. Thank you for tuning into Big Little Lives, where every episode we'll be tackling different subjects about parenthood and pediatrics. याद रहे, this is for general knowledge, building a community, and not a replacement for your doctor's appointment. If you like this video, please like, share, and subscribe. Thank you for your time. See you next time on Big Little Lives.